Hello students, today I am going to discuss JEE Main 2020 questions. Topic is application of derivatives. First question, if the tangent to the curve y equal to x plus sine y at a point AB is parallel to the line joining 0, 3 by 2 and 1 by 2, 2, then it means point on the curve is AB and tangent is parallel to this line joining these 2 points. It means indirectly slope of tangent is given. तो slope of tangent हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, dy by dx. First thing is AB lies on this curve, लाई करा दिया हमने. Now differentiating both sides with respect to x, dy by dx equal to 1 plus cos y dy by dx. So from here we get dy by dx equal to 1 by 1 minus cos y. Now tangent at point AB. So tangent, slope of tangent at point AB is 1 by 1 minus cos b, and here slope is slope of line joining 2 points, to y2 minus y1 by x2 minus x1. From here we get cos b equal to 0. Cos b equal to 0, then sin b will be equal to plus minus 1. Cos b 0 means angle may be pi by 2 or 3 pi by 2, so sin b equal to plus minus 1. Here we can put sin b, value of sin b is plus minus 1, so b minus a equal to plus minus 1. We have to find modulus of b minus a, that is 1. This is simple question. Next question, if px be a polynomial of degree 3 that has a local maximum value 8 at x equal to 1 and a local minimum value 4 at x equal to 2, then p of 0. Since local maxima and local minima is given at x equal to 1 and x equal to 2, it means at x equal to 1 and x equal to 2, p dash x will be 0. It means x equal to 1 and x equal to 2 are roots of p dash x equal to 0. And since degree is 3, hence we can write p dash x equal to a x minus 1 x minus 2. Coefficient may be different. This is, we have taken this a. So px equal to, integrating both sides, we will get like this. This is constant of integration. Now p of 1 equal to 8, local maximum value is 8. इसका मतलब p of 1 का वैल्यू कितना गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू 8 है, इसका मतलब 1 पे px का वैल्यू कितना है 8, तो p of 1 equal to 8 यहाँ पे रख दिया. एंड सिमिलरली p of 2 equal to 4, मिनिमम वैल्यू भी गिवन है, p of 2 equal to 4, यहाँ से a और b का वैल्यू आ गया, a और b का वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो px आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड p of 0. तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो p of 0 क्या होगा, b होगा, b का वैल्यू -12. दैट इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट phk be a point on the curve y equal to x square plus 7x plus 2 nearest to the line y equal to 3x minus 3. The equation of normal to the curve at p. अब देखना, हमको गिवन है कि पी एच के भी ए पॉइंट ऑन दिस कर्व नियरेस्ट टू द लाइन, दिस, इस लाइन के नियरेस्ट. नियरेस्ट किसके लॉन्ग होता है, ऑलवेज नॉर्मल के लॉन्ग होता है, तो दिस इज नॉर्मल. तो नॉर्मल कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग, तो नॉर्मल टू द लाइन ऑल्सो बिकम्स नॉर्मल टू दिस कर्व. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट पी एच के इज 3. क्यों, दिस इज नॉर्मल, तो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. इट मीन्स tangent will be parallel to this line. Parallel to this line, slope is 3. So tangent, slope of tangent at PHK becomes 3. तो यहाँ से हमने slope of tangent फाइंड आउट कर लिया. 2x plus 7 आएगा, x की जगह h रख दिया, 2h plus 7, h equal to -2. h के lies on this, तो यहाँ से h का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो k आ गया, तो पॉइंट p आ गया हमारे पास. अब नॉर्मल एट पॉइंट p, तो p पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप यहाँ से देख सकते हो कि इस लाइन का स्लोप 3 है, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप -1/3, तो दिस बिकम्स नॉर्मल. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f is given defined by f of 0 equal to 1 and fx equal to this, then function f, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन नेचर पूछा जा रहा है. तो फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एज वी नो वी फाइंड f dash x, तो f dash x ये आ गया. अब यहाँ पे हमको देखना है कि f dash x का साइन, तो यहाँ से आप देख सकते हो x, यहाँ पे log x चूँकि आ गया log 1 + x, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग साइन नहीं बता सकते. हाँ, नीचे का अगर -1 to 0 आप देखोगे,
-1 से ग्रेटर के लिए यहाँ पे पूछा गया -1 टू इन्फिनिटी, -1 टू 0। तो -1 से ग्रेटर के लिए आप देख सकते हो कि ये डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव, तो इसका साइन देखना है न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर को हमने एच एक्स मान लिया अलग से, तो एच डैश एक्स ही आ गया माइनस एल एन वन प्लस एक्स। अब नाउ व्हेन एक्स बिलोंगिंग -1 टू 0, -1 टू 0 लाइज बिटवीन 0 टू 1। 0 टू 1 के बीच में लॉग का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर है। व्हेन एक्स लाइज बिटवीन -1 टू 0, देखो एक्स लाइज बिटवीन -1 टू 0, 1 प्लस एक्स, 1 ऐड कर दो, 0 1 प्लस एक्स लेस देन 1। अब 1 प्लस एक्स का वैल्यू होगा 0 से 1 के बीच में है, लॉग का ग्राफ आप देख सकते हो ऐसे आता है तरीके से, 0 से 1 के बीच में लॉग क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगा और ये माइनस ऑलरेडी है तो पॉजिटिव, तो एच डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एच एक्स इंक्रीजिंग इन -1 टू 0। 0 टू इन्फिनिटी, ये 1 से ग्रेटर हो गया, 1 से ग्रेटर हो गया तो ये पॉजिटिव आएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है तो log 1 प्लस समथिंग, ये पॉजिटिव माइनस साइन है नेगेटिव, तो एच एक्स डिक्रीजिंग इन 0 टू इन्फिनिटी, एच ऑफ 0 इक्वल टू 0, एच ऑफ 0 0 है। अब -1 से 0 में इंक्रीजिंग है तो ये मान लिया -1 है, तो -1 से 0 में इंक्रीजिंग और 0 पे 0, फिर 0 के आगे डिक्रीजिंग, इसका मतलब एच ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा, 0 के नीचे होगा, तो एच एक्स इज लेस देन 0 इन -1 टू इन्फिनिटी। तो ये क्वांटिटी लेस देन 0 हो गया, वो नीचे क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, ये पूरा क्वांटिटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो -1 टू इन्फिनिटी में फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस, सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। नॉर्मल का इक्वेशन पूछा जा रहा है, इसका मतलब सबसे पहले हमको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना होगा, उससे टेंजेंट का स्लोप आएगा, उससे नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 यहाँ रख दिया, y इक्वल टू 2 आ गया, तो पॉइंट क्या हो गया, 0 2। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस, तो y इक्वल टू, हमने मान लिया इस क्वांटिटी को u और इसको v, तो y इक्वल टू यू प्लस वी आ गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब u भी अलग अलग लेके डिफ्रेंशिएट कर दिया, जिसे आपको ऑलरेडी पता ही है, u ले लिया, दोनों साइड log ले लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी यू बाई डी एक्स आ गया, एट 0 2 यहाँ 0 2 रख दिया पूरे में, डी यू बाई डी एक्स 4 आ गया। सिमिलरली v इक्वल टू कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉस का साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट, तो डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर दो, एक्स इक्वल टू 0 रखोगे, देखो एक्स इक्वल टू 0, साइन इनवर्स 0 ही 0, साइन 0, ये पूरा 0 बन गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स कितना आया था, 4, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, 4। तो ये क्या चीज़ आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/4 नॉर्मल का। ये सिंपल क्वेश्चन है, वही कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा। तो एओडी में देख रहे हो आप क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आ गए, ये 2 सितंबर का क्वेश्चन है, तो मॉर्निंग और इवनिंग मिला करके 4 क्वेश्चन, तो लगभग एओडी से आप मान के चलना है आपको कि 2 क्वेश्चन लगभग आता ही है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, गुड लक।